ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। विवेक चूड़ामणि, श्लोक नंबर 553। लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वा वायस्तिष्ठेत् केवलात्मना शिव एवं स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्मविदुत्तमः। How you will practice consciousness? Many a times, many a times, more than each and every class, I tell you about consciousness. That be conscious, be conscious, be conscious. You also listen. Some of you try to be conscious, some of you pretend to be conscious. But in our mind, there may be a question: what is consciousness? Upon which we will be conscious. If in my life, if I am having an aim, set some goals, and really plan how to execute it or how to reach at the aim and work out that plan. This total process is called consciousness. It is not Chaitanya. That the whole life is uh, how is Brahman? Brahman is uh, existence, consciousness, bliss. I'm not talking about that consciousness. I'm talking about that consciousness, little lower stratum, when we refer that, oh, I became unconscious. So, first thing, you have to prioritize your aim. Aim should be one. Goals may be different, though it may not be. But there must be one aim. If you are having many aims, your life will be distracted and devastating, horrible. If in my life there is one aim, then goals may be different out of your own vasanas. But if your aim is fixed, then all the goals will be set to reach that aim. Many times, to fulfill my goal, when I forget what I am doing, then my aim will give me the direction
that where you have to reach over there. Here, as a Vedanta sadhaka, our only goal is to realize Brahman. One and only goal is to realize Brahman. What does it mean by realizing the realization? It is called self-realization. To know who am I, to know what is Jagat, to know what is the relationship between me and Jagat, what is the truth hidden amongst the whole perceived world. I have to know. Or it can be translated in different way that Atyantika Dukkha Nivritti Paramananda Prapti. Total cessation of sorrow, an attainment of supreme bliss. For a bhakta, I will know him, I will see him, I will touch him, I'll smell him, I will taste him. भक्त का एक ही लक्ष्य है भगवान, और ज्ञानी का एक ही लक्षण है आत्मज्ञान। योगी का एक ही लक्ष्य है separation and attachment through a different path. Separation from the whole world, including the body, शरीर से लेकर पूरा पृथ्वी से अलग होना, और अपने स्वरूप के साथ युक्त होने के नाम ही योग है। नाम अलग अलग है, विषय एक ही है। ध्यान, धारणा, समाधि, यही मेरा लक्ष्य मीन्स गोल। हाउ टू रियलाइज द सेल्फ। Now you have to fulfill some goals. What are the goals over here? Dharana, Jnana, Samadhi. They are the goals, not the aim. समाधि किसी जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। समाधि के बाद क्या? समाधि is also the highest and subtlest kind of spiritual entertainment. Aim is
to realize the self, to establish in the knowledge, and executing this knowledge in every bit, in every sphere of life. That is consciousness. Who am I? That knowledge will be always ringing, jingling, knocking. Who am I? When he is awake, when he is in deep sleep, when he is dreaming. While transacting with the world, when in the heavy crowd, in every breath of life, he may be a grihasthi or vanaprasthi or brahmachari or sannyas. Those classifications are done by us only. ये गृहस्थी है, ये ब्रह्मचारी है, ये सन्यासी है, ये वानप्रस्थी है. व्यवहार के सुविधा के लिए ये विभाजन. एक इंडिविजुअल की व्यवहार जगत के साथ और जगत की व्यवहार एक इंडिविजुअल के साथ कैसे होना चाहिए, इसको सुस्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये सामाजिक विभाजन है. जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही ब्रह्मचारी, गार्हस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये सारे डिवीजन व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं. परमार्थ में तो कोई डिवीजन नहीं. लेकिन अगर इस डिवीजन को कोई अप्रिशिएट करके अपने लक्ष्य की ओर चले तो परमार्थ प्राप्ति अवश्य संभावी. लक्ष्य अलक्ष्य गतिम त्यक्त्वा वा यह तिष्ठेत केवलात्मना शिव एवं स्वयं साक्षात अयम ब्रह्मविद उत्तमः. ध्यान, धारणा, समाधि मेरा लक्ष्य है और विषय चिंतन मेरा अलक्ष्य है. इतना तो बोध होना चाहिए कि इतने साल की उम्र हो गया, जो हुई सो हुई, जो राम रचि रात. भगवान की इच्छा में सब कुछ हो रहा.
मैं क्यों चिंता करूं। इतना तो मैच्योर्ड होना चाहिए। उम्र तो इतना हो गया, मैच्योरिटी तो इतना होना चाहिए कि क्यों मैं विषय व्यक्ति को लेकर इतना परेशान रहता हूं। क्यों मैं मेरा भगवान की प्रति प्रेम में अब तक डूबे नहीं रहे। उसी भगवान की इच्छा में मेरा पूरा जीवन चल रहा है। ना तो मैं जानता था कौन मेरा पिता होगा, कौन मेरा माता होगा, कौन मेरा भाई होगा। सब भगवान की इच्छा से हुआ। कहाँ मेरा शादी होगा, कौन मेरा बच्चा होगा। मैं गर्व करता हूँ मेरा बेटा ये है, मेरा बेटी। अरे कहाँ की मेरे मेरे मेरे। डिड यू नो कितने का बच्चा ऑटिज्म में है, पंगु है, विकलांग है। अगर बोलते हैं भगवान ने बनाया, तो अगर किसी का बच्चा अच्छा भी है वो भी भगवान ने ही बनाया, तुमने नहीं बनाया। तुमसे बनाया गया है। जो भगवान एक पल में दे सकता है ना, आधे पल में वो छीन भी सकता है। किसी के प्रति गर्व मत करो। भगवान कृपा परवश होकर मन में भक्ति दिया है। कृपा परवश होकर मन में ज्ञान लाभ की वासना दिया है। अप्रिसिएट इट। भगवान जीवन में गुरु देता है। भगवान खुद आते हैं। पहला पहला बहुत अच्छा लगता है। जीवन में टिके रहना एक बड़ा बात है। ऐसे ऐसे चख के बहुत सारी चीज है, आप चखना चालू किया, पेट भर सकता है, पुष्टि नहीं। और वो एक दिन दो दिन ही चलेगा, पूरा जिंदगी नहीं। भगवान के नाम पे भरोसा, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति होना चाहिए। हमारे पास इनफ मटेरियल है। हाउ टू लिव अ कंड्यूसिव लाइफ एज ए भक्त, एज ए ज्ञानी। उसे कॉन्सियसनेस चाहिए उस चीज में। अरे मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं, मैं आज क्या पढ़ा, मैं क्या सुना, और मेरा व्यवहार क्या हो रहा है। इसे सचेतनता बोलते हैं। खुद खुद को चेतावनी दो। ये दुर्लभ ज्ञान वासना, भक्ति वासना जीवन में आए हैं। कैसे इसे रक्षा करें। बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद, बहुत प्रार्थना के बाद, बहुत पूजा करने के बाद, बहुत नष्ट हो जाने के बाद, जब किसी के अंदर गर्भ संचार होता है ना, वो माँ कैसे प्रोटेक्टिव रहते हैं। ऐसे ही आपको प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा। आपके अंदर में जो भक्ति वासना, ज्ञान वासना,
आए हैं। If any of your thought process, any of your action become hindrance, chop it off. तुरंत उसे विष जैसे परित्याग कीजिए, उस भावना को, उस चिंतन पद्धति को, उस व्यवहार को। अपने लक्ष्य के साथ कभी प्रताड़ना नहीं मत कीजिए। डोंट चीट योर सेल्फ। पूरा जिंदगी भर वी चीट आवर सेल्फ। मेरा लक्ष्य क्या है और मेरा अलक्ष्य क्या है, ये ज्ञान लाभ की पहला स्थिति है। ज्ञान लाभ जिनका हो जाता है, आत्म कृपा, गुरु कृपा और शास्त्र कृपा में जो व्यक्ति का एक बार आत्मज्ञान हो गया, ये दोनों वृत्ति का ही पार चला जाता है। तब मेरा लक्ष्य और मेरा अलक्ष्य बोल के अलग कुछ नहीं रहता है। वही ब्रह्मज्ञ पुरुष सदा सर्वदा शुद्ध आत्मा के रूप में अवस्थान करते हैं। बहुत कुछ कर सकते हो व्यक्ति, बहुत कुछ, लेकिन वही व्यक्ति शिव तुल्य है, जो बहुत कुछ करने के साथ साथ कभी 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 नहीं भूलते वो कौन है, जगत कौन है, और जगत के साथ उनका संबंध क्या है। दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ द श्लोका। जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशाद् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। शरीर शांत हो जाने के बाद, जिसे हम लोग मृत्यु बोलते हैं, जीवात्मा तो एक मुक्ति अनुभव करते ही है, लेकिन वो टेम्पोररी मुक्ति है। आपको अगर किसी ने बांध के रखा और वो भी सोने का जंजीर से, जिसमें द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डायमंड इज स्टडेड, फिर भी वो जंजीर ही है। आप जो भी, आप महान हो, प्रशंसित हो, जो भी हो, जीवात्मा एक शरीर में कॉन्फाइंड रहते हैं। मृत्यु के बाद जब उनका मुक्ति होता है,
तो कैसे खिल उठते हैं। लेकिन फिर भी उनको जन्म लेना पड़ता है उनके कर्म के अनुसार। मुक्ति के बाद फिर से वो बंधा हुआ जीवन। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जो शिव तुल्य है, जिनके बारे में हम लोग पिछले श्लोक पढ़ा, जो हर पल कॉन्शस है, हु एम आई, साध्य की साधन करते करते जो खुद साध्य बन गया। प्रेम की माला जपते जपते अब बनी मैं श्याम। श्याम की माला जपते जपते आज बनी मैं श्याम। मतलब श्याम की माला जप करते करते जो व्यक्ति खुद श्याम बन जाता है, उनको मुक्ति की आस्वादन करने के लिए शरीर छोड़ने का जरूरत ही नहीं है। वो व्यक्ति जीते जी इस शरीर रहते हुए ही मुक्त है। जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, वो जीवित अवस्था में ही मुक्ति का स्वाद लेकर कृतार्थता अनुभव करते हैं। लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। उनको पता चलता है कि मैं तो हर पल ब्रह्म ही था। सिर्फ गलत फहमी में मैं सोचा कि मैं ये हूं, वो हूं, दिवाकर हूं। सिर्फ शरीर जाने के बाद उस जीवात्मा की भावना उस बूंद सिंध में मिल जाते हैं और चिर मुक्त हो जाता है। जीवन एव सदा मुक्त। कभी ये बांधा हुआ था ही नहीं। और उपाधि नाशात ब्रह्म एव सन। ब्रह्म अपि इति अद्वयम और निर्द्वय। शैलूष वेश सद्भावा भावयोश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मवित् श्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः। जो लोग थिएटर वगैरह देखे हैं, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, थिएटर। जो लोग थिएटर में अभिनय करते हैं, चरित्र के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट नाटक के अनुसार, अभिनय के अनुसार
स्टोरी के अनुसार किसी व्यक्ति को कभी पुरुष का रोल, कभी नारी का रोल, तो कभी पशु का रोल भी करना पड़ता है। दो बंदा मिलके कभी सिंह बना, कभी बकरा बना, कुछ तो होता है ना। अगर अभिनय के लिए जो भी बनते हैं, बट दैट पर्सन इज ऑलवेज अलर्ट दैट हु इज ही। नाटक में उनका चरित्र अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन उनका असली नाम वो कभी नहीं भूलते। ऐसे ही जिनका ब्रह्म ज्ञान हुआ है, जिनका स्वरूप का ज्ञान हुआ है, जिन्होंने अपने अस्तित्व के बारे में सदा सचेतन है, उनका शरीर का अभिमान चला गया कि मैं पुरुष हूं कि मैं नारी हूं, उनके मन से टॉक्सिक पॉजिटिवनेस चला जाता है। नहीं तो प्रेम के नाम से ऐसे ही व्यक्ति खुद का जीवन परेशान कर देता है, दूसरे का जीवन भी परेशान कर देता है, और नाम लगा देता है प्रेम। सुपर टॉक्सिक पॉजिटिवनेस में ऐसे बंदा भुगतते हैं। लेकिन जिनका सच में आत्मज्ञान हुआ, उनका ये टॉक्सिसिटी चला जाता है। अगर उनको लगता है कि मुझे बातचीत करना नहीं आता है, आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, मुझे पता नहीं क्या कहाँ क्या बोल देता हूँ, वो व्यक्ति मौनता अवलंबन करते हैं। वो व्यक्ति जिस शरीर में ही रहे, चाहे वो पुरुष के शरीर में आए, चाहे वो स्त्री की शरीर में, एवरी टाइम ही और शी इज वेरीली कॉन्शियस, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। जीव भाव कभी नहीं आता। ये भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, इसे विश्वास कीजिए और आत्मज्ञान लाभ कीजिए। आपकी शरीर मन बुद्धि से जितना भी नॉन कंड्यूसिव टॉक्सिसिटी है, उसे अब निकाल के आइए। हरि ही ओम तत्सत।